It is a good time because the Mercury retrograde is over, and that actually tells us that everything is moving in the right direction and everything has started to align in a better reform. Though the Saturn is still on a retrograde, it is causing a little bit of slowdown in career and in decision making. But don't worry, I think this time is still better than the Mars Ketu conjunction and everything bad which was happening in the past few weeks. This is a time where you have been feeling very struck, but there is a moment. The moment is good and it is in the right direction. Some have been waiting from the... Hello, Namaskar and welcome back to the Hope Tarot. My name is Dr. Sneha Jain and today we are going to talk about your weekly horoscope from 18th to 24th of August. What exactly are the stars saying? It is a good time because the Mercury retrograde is over, and that actually tells us that everything is moving in the right direction and everything has started to align in a better reform. Though the Saturn is still on a retrograde, it is causing a little bit of slowdown in career and in decision making. But don't worry, I think this time is still better than the Mars Ketu conjunction and everything bad which was happening in the past few weeks. So let's get started and let's understand what exactly are the stars and the planets telling us about your weekly horoscope. Starting first from the Aries. Aries, this is a time where you have been feeling very struck, but there is a moment. The moment is good and it is in the right direction. Some have been waiting from the universe are now coming true, and this is a time where there is, an opening from a new door, okay, and you are literally moving your space. This is a time where the energy is moving in the right direction. This is the time where you are actually reconciling with a past partner, and this is also a time where the mental illness and the mental stagnancy that you were facing is going easy. Also, ये एक ऐसा टाइम है where a man can take good actions towards you. ये एक ऐसा टाइम है where your partner can start confessing their feelings and एक ऐसा सरप्राइज जैसा मिल सकता है from the partner's front. So talking about number one, the love is really well and it is going to be in the right direction. Number two, on the career front is actually moving in the right frame. Specifically विदेश से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है. Number three, when we talk about the health front, the health is actually sailing very well and आपको health में एक अच्छा interface दिखाई दे जाएगा. Talking about Taurus, this is a time where you are feeling very heavy. थोड़ा सा heaviness इस वजह से भी है because the times are moving a little slow for you and there are a lot of things to do at once. तो बहुत सारा to do list है, but because of that you feel a little tired initially. But the week is very good, specifically as the love life is concerned. On the love front, I can see a good movement, I can see positivity, I can see that a new approach can come, harmony can come, positivity can come on the love front. Talking about career, there can be an increment which was overdue and this increment is going to come. This money is going to increase and it is going to bring forth positivity and good change inside you. Thirdly, when I talk about the health is improving and it is becoming much better. The only thing is कि आपको बहुत ज़्यादा enforced लग रहा है because of a lot of things on your shoulders at once and because of that आपको थोड़ा सा negative feel हो रहा है, but इतना stress लेने की I think ज़रूरत नहीं है. Time है, कट जाता है और कट ही जाएगा. Talking next about the Gemini, this is a time जहाँ पर the love is really flowing in the good direction and there can be a lot of good energy and good luck flowing on the love front. Technically talking, you are the king or the queen of all times at this stage and आपको ऐसा feel होगा कि सब चीज़ हम accomplish कर सकते हैं. But when we talk about the money front, money is flowing recklessly, endlessly and there are new opportunities which are being created. ये जो नई opportunities हैं, ये आपको पैसे से एक नया interface, नया stage provide करेगी where you can set things on move and you can make the most of this time.
टॉकिंग अबाउट हेल्थ फ्रंट, थोड़ा सा वहां मुझे चिंता इसलिए है क्योंकि वहां पर आपको फिजिकली कुछ इश्यूज हो सकते हैं, चोट लगना, एक्सीडेंट होना, लोअर बॉडी में एक्सीडेंट होना, या वहां पर कुछ पेन्स रहना, क्रैम्प्स रहना, वाला चीज हो सकता है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू एनी रेकलेस एटीट्यूड एट द हेल्थ फ्रंट बिकॉज दैट इज नॉट अप्रिशिएबल. बट अदरवाइज ये जो टाइम है ये एक्चुअली एक अच्छा टाइम है बाकी फ्रंट्स पे. Talking next about the Cancer. Cancerians, this is a period where you are actually feeling good on the love front because your partner is actually attracting you on all the scales. And ये जो attraction है ये बहुत ज़्यादा positive attraction जैसा दिखाई देता है. अगर आप एक long distance relationship में थे तो वहाँ पर एक अच्छा opening दिखाई देता है where you guys can meet or you can have a new interface. फैमिली मीटिंग्स, कमिटमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल एट दिस टाइम क्योंकि ये एक नया ऐसा चीज है जहां पर चीजें मूव कर रही हैं इन द राइट डायरेक्शन. While we talk about the career or the money front, I can feel that career में एक new beginning हो सकती है. There can be a woman who can help you with the career and who can help to elevate the career in all circumstances. While on the health front also you'll feel okay, you'll feel more fertile, and for pregnancy and conception it is a good time. For females the health is going absolutely good and आपके लिए भी ये टाइम एक अच्छा टाइम की तरह दिखाई देते हैं. बस आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइजेशन और फोकस पे ध्यान रखिएगा. Leos, this is a time where the justice is happening with you. बहुत टाइम से एक अनड्यू ऐसी चीज थी जिससे आप जूझ रहे थे, बट इस हफ्ता आपको जस्टिस मिल रहा है. Justice comes in all forms at this time, where it can be in the level of money, in the level of love, and in the level of family and compassion. So number one, the love life is getting better. Of course you are not very pleased with everything which is coming to you. Of course थोड़ा सा एक hindrance जैसा मैं देख सकती हूँ, या थोड़ा सा आपका मन नहीं लग रहा लवर के साथ, या लव लाइफ में थोड़ा सा चीजों को चेंज करने का मन कर रहा है. आई कैन अंडरस्टैंड, बट दिस इज अ टाइम वेर यू मे फील अ लिटिल फ्लक्स्ड, बट दिस इज जस्ट अ फ्लक्स, ओके, एंड इट्स नॉट समथिंग विच कैन बी कॉल्ड एज अ डिसोरिएंटेशन. थोड़ा सा टाइम है, मन नहीं है तो छोड़ दो या काट दो इस टाइम को. सेकेंडली, ऑन द मनी फ्रंट और द करियर फ्रंट यू आर मूविंग विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. रेकलेस डिसीजंस, बोल्ड डिसीजंस आर ऑन द लिस्ट, एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपको जस्टिस सर्व होगा. बहुत टाइम से रुकी हुई चीज मूव करेगी और रुकी हुई चीज प्रोसेस करने के पूरे चांसेस हैं. Then when we talk about the health front, I can actually see you taming a lion. Okay, so the health which has been a little unprogressive with time, अब जाके एक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है और पता चल रहा है कि ये जो प्रोग्रेस है ये राइट डायरेक्शन में है. तो हेल्थ फ्रंट पे जो भी लिए गए एक्शंस हैं वो आपको आगे अच्छे और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाले हैं. Talking next about the Virgos, this is a period where your things are moving, but the bad things are releasing. So specifically on the love front, there can be a problem which is caused by an elderly man. तो कोई elderly ऐसे man है, हो सकता है आपके father हो सकता है आपके partner के father हो, या कोई ऐसा elder इंसान जो आपको थोड़ा सा परेशान करे at this time और थोड़ा सा आपकी love life में हिंडर करने की आपको कोशिश करे. तो वहां पर थोड़ा सा बच के रहना है, maturity से डील करनी है, बिकॉज ऐसा करने से आपके रास्ते आगे खुलते चले जाएंगे. मनी वाइज अगर मैं करियर की बात करूं तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी सामने से आता दिखाई दे रहा है. ये अपॉर्चुनिटी आपको पैसा भी देगा, फेम भी देगा, मल्टीप्लिकेशन भी देगा और एक अच्छा वो सोर्स जनरेट करेगा. देयर इज ऑल्सो लाइक अ न्यू बिगिनिंग ऑन द मनी फ्रंट. तो अगर आपको इंटरव्यू देना था या ऐसा कुछ था तो वो देने का भी टाइम आ गया है. हेल्थ फ्रंट पे वर्गोस कुछ करने की जरूरत नहीं है. वैसे भी आप में एक मास का जो ट्रांजिट चल रहा है, इस वजह से इस टाइम पे थोड़ा सा प्रिकॉशनली चलना था 20 दिन. तो अभी 20 दिन हेल्थ पे कुछ नहीं करना है. हैंग ऑन देयर, रेस्ट करो, आराम करो, ज्यादा स्ट्रगल मत करो, छोटा मोटा वॉक कर लो, साइकिलिंग कर लो, बट बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस या कुछ हेल्थ फ्रंट पे बहुत हैवी करना मैं मना करूंगी. टेक इट इजी, टेक रेस्ट. Libras, this is a time where on the love front specifically, I can see that you are not having a very good period. Specifically family में clashes होना,
पेरेंट्स के साथ क्लैशेस होना, अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ क्लैशेस होना इस टाइम पे हो सकता है। इस टाइम पे अगर आप अपना थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रखेंगे, कम कम्युनिकेट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हफ्ता वैसे भी एक इल्यूजन का टाइम है और एक ऐसा वीक है जहां पर आप मेंटली बहुत अनस्टेबल दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादा लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टेक अ बैक सीट एंड देखते रहो क्या हो रहा है, पर खुद कुछ मत करो। When we talk about the money front, there can be people who can try to fool you with money. तो पैसे से बुद्धू बनाना, चालाकियाँ खेलना, फ्रॉड होना, ये सब लाइकली है, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा वहाँ पर टेक इट ईजी करें। While on the health front again, you can have some kind of injury, some kind of breathing issues, some kind of limb injuries, तो इस टाइम हेल्थ पे भी ध्यान रखना है। तो ओवरऑल हफ्ता बहुत ध्यान रखने का है। रिलीज कर दो, हफ्ते को जाने दो, ज्यादा पकड़ के चलोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। Scorpions, this is a time where your love is a little hindered. Specifically मैं पहले ही ये बात बोल दूं because I know कि आपका expectation बहुत ज़्यादा है, but Scorpions अभी love में ना सामने वाला बहुत toxic behave कर सकता है, and this is not about you, this is about them. Maybe they are struggling in their lives and because of that they're projecting negativity to you. But Scorpions, I'm telling you, अगर आप यहाँ पर जवाब देने लग जाएंगे, लड़ाई करने लग जाएंगे, तो रिश्ता ब्रेक भी हो सकता है। तो इस हफ्ता लव लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है। ये कंसंट्रेशन बिल्कुल हटा के करियर पे लगा दीजिए। करियर में अगर आप स्टूडेंट हैं या आपने एक नया जॉब स्टार्ट करा है, एक नया वेंचर स्टार्ट करा है, दिस इज एन अल्टीमेट टाइम फॉर ग्रोथ। दिस इज अ टाइम वेयर योर body language will mimic money, so whatever you will do will make money, and पैसे एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे लिए गए एक्शंस, अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइजिंग, ये सब आपको बहुत बेनिफिट करेगा ऑन द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। बट व्हेन आई टॉक अबाउट द लव, आई थिंक ये एक टाइम आउट वाला टाइम है। ज्यादा अगर आप लव एनर्जीज पे वो करोगे तो टाइम खराब होगा, बट अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने पैसे पे ध्यान देंगे, तो ग्रोथ आएगा। Sagittarius, this is a time where लव के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। ओके, लव, प्रेगनेंसी, कंसेप्शन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। योर पार्टनर इज लिटरली ट्रीटिंग यू लाइक अ प्रिंसेस और अ प्रिंस, एंड दिस इज अ टाइम वेयर यू आर मूविंग एंड एवरीथिंग इज रियली गुड। स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ब्यूटी के लिए, कंपैशन के लिए, पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। आपका इमोशनल बिल्डअप होगा, आपके इमोशंस बेटर होंगे, आप हील होंगे। बट स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट करियर, तो करियर पे ज़्यादा मेहनत होगी। मेहनत का ज़्यादा टाइम है, अपने एक्शंस का ज़्यादा टाइम है, और ये एक्शंस आपको सूनर और लेटर रिजल्ट्स देने वाले हैं, और बढ़िया रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो अभी की मेहनत बाद का सरप्राइज के लिए आप रेडी रहें। हेल्थ फ्रंट पे थिंग्स आर इम्प्रूविंग, यू आर बिकमिंग बेटर। ऑफकोर्स ये इम्प्रूवमेंट है, तो आपको भी अपनी तरफ से कुछ अपनी तरफ से अटेम्प्ट्स करने हैं। योगा, मेडिटेशन, इजी प्रैक्टिसेस, नॉट कार्डियो और हेवी वेट लिफ्टिंग विल हेल्प। ट्राई टू टेक इट इजी ऑन द हेल्थ फ्रंट, बट अदरवाइज ऑन द होल लेवल आई थिंक सैजिटेरियस के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा होने वाला है। Talking next about the Capricorns, this is a good week specifically for money. It is a very good week for love as well and health also. Health का भी बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम लव की बात करें, पास्ट मेमोरीज थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। कोई पास्ट लवर वापस आ सकता है, या कोई पास्ट रिलेशनशिप बिल्कुल हील हो सकता है। ये आपके कुछ फैमिली रिलेशनशिप में भी इंक्लूड होता है। ज़्यादा स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं और कमिटमेंट, मैरिज की तरफ भी मूव कर रहे हैं, तो टाइम स्पेसिफिकली ऑन द लव फ्रंट इज वेरी गुड। इफ आई टॉक अबाउट द करियर, इट इज मच ब्राइटर, क्योंकि करियर में एक सूरज की तरह आप चमक रहे हैं। दिस इज अ टाइम वेयर एवरीथिंग इज मूविंग इन सच अ ग्रेट एक्सटेंट दैट यू आर लिटरली शाइनिंग ऑल द वे थ्रू, एंड एवरीथिंग इज कमिंग। मतलब वो सक्सेस आ रहा है, हर तरीके का सक्सेस आ रहा है, पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी बन रही है, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी या ये कार वगैरह खरीदने का तो बहुत अच्छा चांस है इस हफ्ता। एंड हेल्थ पे भी आपको जो पीछे स्ट्रगल था 2 हफ्ते, वो अभी खत्म हो रहा है, एंड यू आर बिकमिंग सो मच बेटर। सो ओवरऑल भगवान का नाम लेके स्पिरिचुअली ग्रो करके इस हफ्ते को निकालिएगा, आपका हफ्ता बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा।
Aquarius, this is a period where आपके लिए पावर इंक्रीज हो रही है. आप बहुत डोमिनेट कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, और ये डोमिनेशन दिख रहा है आपके पार्टनर को, बट ये डोमिनेशन को वो पॉजिटिवली ले रहे हैं. दे आर नॉट टेकिंग इट नेगेटिवली, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो ग्रोथ है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो बॉन्ड है, ये ज्यादा अच्छा हो रहा है ऑन द लव फ्रंट. टॉकिंग अबाउट द करियर फ्रंट, नए एक्शंस लिए जा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट में आप एनरोल कर रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, और इससे एक बहुत अच्छा ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है. आई कैन सी थिंग्स ट्रांजिटिंग अपवर्ड्स एंड दे कॉजिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट फाइनेंशियली. टॉकिंग अबाउट द हेल्थ इज इंप्रूविंग टू एन अपहिल लेवल. आपके अंदर पावर, पॉजिटिविटी, सब चीज का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन चल रहा है, एंड इट इज कॉजिंग ऑल द हैप्पीनेस टू फ्लो. सो इट्स गोना बी अ ब्रिलियंट टाइम ऑल टुगेदर. जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम. And lastly, the Pisces. Pisces, this is a period where a good news from an outside country is really on the cards. Celebration का time है, कोई प्रपोजल लेके आ रहा है, जजमेंट आपके फेवर में है. तो ये हफ्ता एक बहुत ब्रिलियंट हफ्ता है 2025 का. ये हफ्ता आपके लिए इतना शाइनिंग और आउटस्टैंडिंग है कि सब चीजें अलाइनमेंट में और एक ब्यूटी में दिखाई दे रही हैं. आई कैन सी ग्रोथ, आई कैन सी पॉजिटिविटी, एंड स्पेसिफिकली लव लाइफ में एक बहुत अच्छा बॉन्ड आपके पार्टनर से, एक सपोर्ट, एक पॉजिटिविटी दिखती है. आई कैन ऑल्सो सी थिंग्स मूविंग एब्सोल्युटली एंड इन फेवर एंड in the right direction for you at this time. I can also see that at the work front specifically you are having some amount of growth. ये growth आपकी इस तरीके की growth है जो आपने बहुत समय में नहीं देखी थी और ये growth आपको mentally बहुत ऊपर लेके जाएगी. इसमें fame, money से लेकर एक आपका performance outrage तक सब चीज involved है. Lastly, health is increasing, it's becoming so much better and mentally आप बहुत strong है, will power बहुत strong है, तो कुछ भी करने के capable है. Health front, mental health, हर चीज एक sync में है and you will feel absolutely brilliant at this time. So this week is going to be brilliant for the most of you. So that concludes all the sun signs, but there is one more thing that I have to tell you. Most of us have a doubt. हमारा जो रिलेशनशिप है क्या वो कार्मिक है, क्या वो एक सोलमेट रिलेशनशिप है, क्या मैं एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ, क्या ये पार्टनर हमेशा के लिए रहेगा या चला जाएगा, या मैं इसको डिवोर्स कर दूँ, छोड़ दूँ. तो इस तरीके का डाउट अगर आपके मन में बार बार आता है तो एक यूट्यूब वीडियो, अभी 2-3 वीडियो नीचे शेयर करी हुई है, एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ. चेक दैट वीडियो, इट हैज गॉट अमेजिंग इन्फॉर्मेशन. लास्ट तक के वीडियो में ना आपको आपका रिलेशनशिप किस टाइप का रिलेशनशिप है, क्या आपको रहना चाहिए, क्या आपको छोड़ देना चाहिए, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगा. गो चेक इट आउट. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कम बैक नेक्स्ट वीक एंड टेल यू अबाउट योर वीकली प्रेडिक्शंस. दिस इज मी, डॉक्टर स्नेहा जैन, साइनिंग ऑफ.